Welcome all to another episode of Chanakya Talk Series podcast. Today we have with us our dynamic director, Dr. Bhupen Kumar Som. Dr. Som has over 20 years of experience in academics, research. He has more than 100 papers in international and national referred journals. He is also associated with many national and international institutes where he has been the part of academic advisory board in terms of curriculum development, in terms of research guidance. Dr. Som, welcome to the podcast. Thank you. Thanks a lot. Sir, to start our podcast, I would like you to paint the picture of the current higher education in India. What are the challenges, what are the characteristics, and what is the opportunities that we have in India regarding to the higher education system? So, when I see the higher education system, we just need to see it from the lens of NEP 2020, which is very important because many of the institutions have already adopted it, and the institutions who will have not adopted it, they are pretty much thinking in the same direction. So, आने वाले जो कुछ साल हैं, I would say at least till the time we receive the next draft, आने वाला जो टाइम होगा हायर एजुकेशन का, that is supposed to be governed by NEP 2020. Yes. And clearly we need to see it from that particular lens. So when I see the future of in fact the current state, not the future state as you mentioned, current state of higher education in India, I see it completely from the lens of what is the existing structure of National Education Policy 2020. And primarily I always kind of try to look at from the perspective of five fundamental pillars of NEP 2020, which is accessibility, accountability, affordability, equity, and quality. So when I see the current state of higher education system, then there are a lot of these five pillars which are not standing very tall in the structure. When I say accountability, then we have to see what is the reverse mechanism पीछे उसके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने से पहले what is the kind of facilitation the government has provided to the institutions या उसका जो अकाउंटेबिलिटी का मेजरमेंट है what is exactly indicative for that. When I say about affordability, कितनी professional education, what percentage of professional education where the population of this country can afford. When I say the third A, which is accessibility, I think this is again one of the big questions, in higher education system that what is accessibility? Is it so localized? Is it so centralized? Then we have to see equity and the quality of the education also. So if I see all five pillars, there are certain gaps. So I always think that if you are building a big structure, then the pillars are supposed to be strong enough. You must have worked thoroughly that on these fundamentals, this entire structure will be built. So if these fundamentals are not clear, if these fundamentals are not strong enough, then I think there are a lot of questionable things which come up in terms of operations of the policy, in terms of implementation, in terms of evaluating the policy at certain stages, whether it is going in successful or not. So I think current Indian higher education system is in learning phase, and it is the policy and what is operating on the ground. There is a big gap in that. So I think these are the two fundamental things which we need to work upon. Correctly, sir, said, sir. Sir, you talked about affordability. इंडिया में स्टूडेंट्स के पास एक आई वुड से ये लेवरेज है कि उनकी हायर एजुकेशन मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर अफोर्डिंग इट स्टूडेंट्स ज़्यादातर खुद अफोर्ड नहीं कर रहे हैं अगर हम यूएस या यूके से कंपेयर करें वेयर दे गो आउट एंड डू देयर ओन हार्ड वर्क एंड पे देयर फीसेस उस सिनेरियो में हाउ शुड अ स्टूडेंट अप्रोच हायर एजुकेशन इन इंडिया देखिए जब आप अफोर्डेबिलिटी की बात करते हैं द फर्स्ट एंड प्राइमरी क्वेश्चन कम्स इन कि कितने परसेंट स्टूडेंट को किस टाइप का एजुकेशन अफोर्डेबिलिटी है. अगर मैं देखूं अफोर्डेबिलिटी ऑफ कोर्स गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज स्टेट स्पॉन्सर्ड यूनिवर्सिटीज दे आर हाईली अफोर्डेबल बट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन विच दे आर ऑफरिंग leaving few central universities, that is under question. The kind of accountability these universities hold, that is again questionable.
सो आपको ये देखना है कि एजुकेशन को मैं लार्जली 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। वन इज़ एक्चुअली फॉर द नॉलेज बिल्डिंग एंड द क्लासिकल एजुकेशन with traditional subjects of commerce or mathematics or physics or something of that sort. इन क्लासिक कोर्सेज को करने के बाद what are the possible career opportunity which you have? You will see a huge gap. So what happens as a result of it? ज़्यादा से ज़्यादा student they run for the private higher education, which is professional, be it engineering or pharma or medical or probably management as the course we are in. Now you see the per capita income of India. I think it is sitting somewhere below 1.5 lakhs per annum. And if you see the tell me, Amy, if what is the fee of an IIT, removing all subsidies and scholarships and everything? So if you see the yearly fee structure of even a government-sponsored engineering college, it is higher than the per capita income. Correct. So assume a family of, I would say, 2 kids, both of them are getting into graduation. If your per capita income is less than the fee of one individual, how this particular professional education is affordable? So there's a huge gap in between that. So affordability is supposed to be in such a way that there is a lot of industry pitching which is required. Industry should come in. They should actually 2% of CSR any which ways which the industries are putting. So why not to put that a whole 2% into sponsored industry programs? And the students who are not who cannot afford these kind of professional higher fee slabs, so they probably the industries can pick those students, run certain tests and sponsor them. Correct. सो अफोर्डेबिलिटी की जहाँ तक बात है, आपको ये तो देखना ही पड़ेगा कि फंडिंग का जो फ्लो है वो किस तरह से मेंटेन्ड है। आप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को यू कैन नॉट क्वेश्चन देम। अगर आप देखें लार्जली, अगर आप टियर 2 टियर 1 इंस्टीट्यूशंस को देखते हैं, सो येस देयर इज सम मनी व्हिच द इंस्टीट्यूशंस आर मेकिंग आउट ऑफ कंसल्टिंग, राइट, आउट ऑफ डूइंग सर्टेन प्रोजेक्ट्स, but that's not significant. You also understand. Correct. Large level of consulting goes into premier B schools. I'm not sure what kind of apprehensions industry have to rope in tier 2 tier 3 business schools. And if I look at the entire statistics of how many higher education institutes are there in India and how many privileged to have these kind of consultings from in different corporate. So the tuition fee is the only income source in which there are government regulations which are very heavy. It is a little bitter instrument to understand, but I don't know how this max has been worked out by the government, even for the non-profit making organizations. So look at the pay scales which are to be paid to the faculties, other expenses, the bar expenses, and the subsidies are like peanuts, for the institutions. So largely a professional higher education institution, not only in order to sustain, but in order to deliver the quality as well as other promises which they made to the students during the admission. The institution has to come up with huge investments. That investment has to come from tuition fees. Correct, sir. Now that tuition fee is to be sourced from the students and the parents. अब आप अगर इस पूरी साइकिल को देखें, तो हायर एजुकेशन को इंस्टीट्यूशन को यू कैन नॉट क्वेश्चन, because they have to maintain that cycle, they have to provide best of the infrastructure, they have to keep best of the resources, and in order to deliver the quality they have to make huge investments. Right. अब दूसरा, अगर हम पेमेंट साइकिल की अगर मैं बात करूं, इवन द गवर्नमेंट एजेंसीज चार्ज फी फॉर एक्रेडिटेशन, फॉर एफिलिएशन, एवरीथिंग. सो द outflow of money from an higher education institution is very very huge. Correct. और ये पेन कोई नहीं समझ रहा है. To be very honest, this is a very big pain of higher education institution which the government should deeply look into. Now that reflect backs again on students. The fee are soaring high. Same happens in schooling also. Best facility schools have really high fees. Correct. And the reason behind this particular thing is, in order to give the quality, the only funding source is actually students' fee. And some of the schools have even higher fees than higher education system. Absolutely. So आप अगर मैं ड्रीम भी करता हूँ, हाँ गवर्नमेंट लोन्स हैं, अग्री. आप बोलेंगे कि वही गवर्नमेंट ने स्टूडेंट को लोन भी तो दिया हुआ है. आप देखिए जरा एनपीए उठा के बैंक्स का, जितना पर्सनल लोन का डिफॉल्टर है उसमें हाईएस्ट डिफॉल्टर स्टूडेंट लोन है. Correct. इनफैक्ट द क्रेडिट कार्ड डिफॉल्टर्स are, I think, the second lowest, and after that the home loan on auto loans and home loans.
So if you there are roughly total NTA का 11% default. I'm not sure about the stats. You can cross check it. लास्ट ईयर के तो आप ये देखो कि अगर स्टूडेंट लोन लेके एक प्रोफेशनल एजुकेशन में जाता भी है और उसके बाद ही इज फेलिंग टू रीपे इट, सो देन एंटायर इकोनॉमिक साइकिल इज गेटिंग डिस्टर्ब. सो लोन, आई डोंट थिंक इट इज एंड टू एंड सोल्यूशन. And what is the criteria for loan? That is another understanding which we need to develop. You are giving an education loan because education is a right to everybody. Correct. By keeping the KYCs of guarantors in that. Correct. लेकिन ये थोड़ा सा बेटर इंस्ट्रूमेंट है सोचने के लिए, क्या एजुकेशन लोन इतना इजीली नॉन कॉम्पिटेंट स्टूडेंट को मिलना चाहिए जस्ट इन द नेम ऑफ दैट एवरीबडी इज अ राइट टू एजुकेशन? Why a student who has a right to education but not competent enough to repay it, is not skilled enough to take the professional education, why that student doesn't go in a classical traditional course? And I think if we talk about education is loans, अगर हम यूएस का सर डेटा भी उठा के देखें तो द बिगेस्ट पेन ऑफ वर्किंग इंडिविजुअल इज कि उन्होंने 5-5 6-6 साल काम कर लिया एंड स्टिल देयर एजुकेशन लोन इज नॉट पेड ऑफ. एंड एंड द रीजन इज व्हाट यू आर सेइंग, बिकॉज जितना वो एजुकेशन ले रहा है क्या वो उतना जॉब में सक्सेसफुल हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, अर्न कर पा रहा है, नहीं कर रहा है. दैट इज द थिंग. सो ये एक जो स्टैट्स है वो गवर्नमेंट को ये मैथ्स करेक्ट बिठानी होगी. गवर्नमेंट को या जितने भी हमारे बिग थिंकर्स हैं, दे हैव टू कीप दिस स्टैटिस्टिक्स वेरी स्ट्रेट कि ये जो फंड फ्लो है इसको रेगुलराइज कैसे करना है. एंड इनफैक्ट जब हम किसी भी प्रैक्टिस को रेप्लिकेट करते हैं या सोचते हैं, सो वट एवर प्रैक्टिसेस आर कमिंग फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स or any other country and we are thinking these are the good practices, there is no harm in referring them. Reference is always good. लेकिन आपको उसके फ्लॉज फिर रिमूव करने चाहिए. सो मुझे लग रहा है कि जहाँ तक मेरा मेरा अपना सोचना है, a lot of corporate need to pitch in. ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स में एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ सीट्स आप स्पॉन्सर कीजिए हर एक इंस्टीट्यूशन को, एंड द कॉर्पोरेट इज बाउंड टू स्पॉन्सर सर्टेन सीट्स इन सर्टेन इंस्टीट्यूशंस. और इसको जितना फ्री फ्लोटिंग छोड़ेंगे ये नहीं हो पाएगा. rather than leaving in on the choice of people to choose the corporate and everything, I think government should intervene. Regularization is supposed to be there ki XYZ institution are associated with XYZ corporate, so their 2% CSR is going to go into sponsorship. So this is pretty important from the perspective of entire cycle. And then deserving candidates will get the professional education. The fund flow can be managed, the institution will be able to deliver quality. And then comes, in this entire REP structure, the question of accountability. आप इतना facilitate करने के बाद you can ask them कि what is happening, where this fund is going. That Correct. will put a cross check. Correct. That's the way I see it. एंड सर आपने जो बात करी ट्रेडिशनल कोर्सेज और प्रोफेशनल कोर्सेज की, आई थिंक स्टूडेंट शुड ऑल्सो लुक एट दिस द डिफरेंस बिटवीन द टू एंड विच इज सूटेबल. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें MBA और PhD की, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और दोनों में स्पेशली व्हेन इट कम्स टू ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आई थिंक PGDM इज़ वे अहेड देन MBA. हाँ, तो मैं इसको ना हमेशा मैं आपको ऐसे समझाऊँ इसको, अगर PGDM MBA बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, PGDM MBM क्या डिफरेंस है. स्पेसिफिकली अगर हम मैनेजमेंट एजुकेशन की बात करते हैं, सो इफ़ एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको अगर तो मैं आपको बोलता हूँ कि डॉक्टर इबाद अपने लिए बेस्ट जैकेट लेके आइए. क्या? देयर इज़ नो कैप ऑन मनी. आप कितना भी पैसा लगा सकते हैं, कंपनी विल स्पॉन्सर यू. देयर इज़ नो कैप ऑन मार्केट. आपको इंडिया से खरीदना है, US से खरीदना है, UK से खरीदना है, उसका ट्रैवल एक्सपेंस विल कम बी एट द टाइम. दूसरा सिनेरियो में बोलता हूँ डॉक्टर इमाद आपको अपने लिए बेस्ट ऑफ द जैकेट खरीदनी है और ये 1000 रुपये हैं और सिर्फ ये ग्रेटर नोएडा के मार्केट से आपको लेनी. किस सिनेरियो में आपकी डिलीवरी मैटर होगी? Obviously the first two. First, that's PGDM. Correct. And scenario 2 is MBA. Correct. So the autonomy which is provided to PGDM institution ensures that they change the curriculum thick and fast as per the corporate need. The redundant things are to be taken off. The lean management and the optimized curriculums are taught. Students are not only taught, they are being trained with respect to behavioral skills, technical skills, soft skills. That gives a when the corporate has to spend probably 6 months on their training, that they don't have to do. The corporate ultimately gets a manpower which is ready to provide the delivery on day two. So that's what PGDM program is about. There are, I know some, अगर आप इसको
कॉन्स्टिट्यूशनली उठा के देखें तो it is about when the private education started pitching in and मैं अगर 83-84 की बात करूँ there was not enough money in the system. So there were some amendments which were made constitutionally that okay, if somebody cannot offer a PG postgraduate, I would say degree uh, with the required setup, so they can offer a diploma with a smaller setup. तो आप अगर बहुत सारे कॉलेजेस की बात करेंगे they started in very small setups. Correct. तो PGDM MBA की and I said कि there is a larger autonomy with PGDM. So like GIMS में we have a autonomy to run the PGDM program. And you can see that the upgradation of curriculum which is as per the industry need and the exclusive practices which we have adopted. It could be probably Ruby in Mr. Soru Sharma core skill development program, international immersion program where 100% students are getting exposure. You look at the amount of corporate which is coming and interacting. So everything comes at a cost and an autonomous design. So the cost is not only the money, the cost is also, investing the man hours to design these strategies. The cost is also to, organize these events. So operational cost is also there. So I'm saying at I would say I will not even call it as a cost as such. All these costs combined together become an investment. Correct. So there is a lot of autonomy. You can see that there are consistent upgradations of the curriculum which has been done. Recently, AV advisory boards, as I mentioned, in every area there is an advisory board in which the people from corporate, academia, and alumni they come and they release structure and design the curriculum. So ये जो fast pace है and very one thing which I am forgetting is the delivery. Correct. सो आप डिलीवरी कैसे करते हैं जो करंट टीचिंग पैडागोजीज कैसे चेंज हो रहे हैं उसके बाद असेसमेंट कैसे करते हैं आज अगर आप एमबीए में देखो वही पुराने यूनिवर्सिटी से एक पेपर आ रखा है इसमें अप टू अटेम्प्ट सम क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग सो आई एम नॉट पुटिंग हेल्दी इंस्टीट्यूशंस एट फॉल्ट लेकिन जो मैकेनिज्म है कॉन्स्टिट्यूशनली डिजाइंड ही इस तरह से है दैट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम And I think there is a clear gap between the two क्योंकि अगर हम प्लेसमेंट्स की भी बात करें सर और एमबीए इंस्टीट्यूशंस स्पेशली अगर हम पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की बात करें और उनके प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स उठाएं और पीजीएम इंस्टीट्यूशन जिनके लिए प्लेसमेंट नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट बट द सर्वाइवल ऑफ इंस्टीट्यूशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये वर्ड ऑफ माउथ गेम है पीपल आर पुटिंग इन गुड मनी दे वांट गुड प्लेसमेंट्स आई थिंक पीजीडीएम इंस्टीट्यूशन आर वे अहेड इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट आप इसको देखो ना ये पूरा एक साइकिल है आपको if let us suppose if you see the last data the largely the new starters and everything India is nowadays even dominated by service industry. करेक्ट There is no question about it. The government schemes are coming up to boost the manufacturing. Definitely, the manufacturing is going up, but still, the service industry is surpassing it like anything. That's no question about it. And the metropolitan cultures are largely driven by the service industry. Correct. अब आप इसको सर्किल को ऐसे देखिए ना सर्विस इंडस्ट्री डजंट हैव अ मशीन करेक्ट द मशीनरी इज मैन पावर सो यू डिलीवर द सर्विस थ्रू मैन और इवन थ्रू मशीन इफ यू आर डूइंग देयर इज अ लॉट ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन व्हिच इज रिक्वायर्ड तो आप बेस्ट प्रोडक्ट बनाते हो जब आपके पास बेस्ट मशीन होती है करेक्ट तो आप बेस्ट सर्विस दोगे जब आपके पास बेस्ट ह्यूमन बीइंग्स होंगे और बेस्ट ह्यूमन बीइंग की डेफिनेशन क्या है ह्यूमन रिसोर्सेज इनफैक्ट राइट डेफिनेशन इज ह्यूमन रिसोर्स और बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स की डेफिनेशन क्या है हु स्किल्ड विद रेस्पेक्ट टू द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स who actually is having a learner's attitude, who actually can strategize, can deliver. यानी एक सॉफ्ट स्किल का एक बड़ा पैकेज आपको चाहिए विच इज़ एक्चुअली कॉम्पिटेंट इनफ विद द टेक्निकल स्किल्स करेक्ट सो आपको वो मैन पावर मिलता है पीजीडीएम में कहीं ना कहीं कोई गैप एक एमबीए के स्टूडेंट में रह जाता है चाहे वो स्किल डेवलपमेंट का टेक्निकल लेवल पे हो चाहे बिहेवियरल स्किल्स पे हो key components are low so institutions do not have that bandwidth that kind of liberty to spend huge pack because if you're earning less you will spend less this is the circuit so इसीलिए कॉर्पोरेट को भी उन्हें ग्रो करना है सर्विस इंडस्ट्री में उनको बेस्ट ऑफ द मैन पावर चाहिए एंड दैट मैन पावर इज अवेलेबल विद द पीजीडीएम प्रोग्राम so they are ready to pay certain bucks extra to PGDM students for the same profile. एंड आई थिंक हायर एजुकेशन एट हायर एजुकेशन इंडस्ट्री इंटरवेंशन भी बहुत ज़रूरी हो जाता है डायरेक्ट इंडस्ट्री इंटरवेंशन अगर आपके इंस्टीट्यूशन इसमें ना दो तरह का हिमात सर अगर आपको डॉक्टर हिमाद अगर आप देखेंगे इंडस्ट्री इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है लेकिन मेरा हमेशा मानना है आप अगर चाय पीना चाहेंगे कितनी भी टेस्टी हो
वुड यू इमीडिएटली टेक इट, और या आप उसको थोड़ा सा देखें क्योंकि टेम्परेचर सेटल ऑब्वियसली विद दिस, है ना? कुछ भी अगर प्रोड्यूस होता है, सो देयर इज समथिंग कॉल्ड इंटरमीडिएट, ओके, देन इट कैन बी कंज्यूम्ड बाय अ डिफरेंट डोमेन. सो आप इसको इस तरह से देखो कि टू डिफरेंट डोमेन्स आर सपोज टू बी इंटरकनेक्टेड थ्रू अ मीडियम. करेक्ट. जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का सबसे बड़ा चैलेंज है, नोबडी इज लुकिंग एट, नोबडी वांट्स टू एड्रेस इट. वो जो इंटरकनेक्टिविटी वाला जो एक मेथड है ना, मैं इसका अगर आपको दूसरा एग्जांपल देना चाहूँ, सो यू गेट रॉ वेजिटेबल्स. करेक्ट. देयर इज अ मीडियम व्हिच इज कॉल्ड किचन. तो आप किचन में उसको पकाते हैं एंड देन यू कंज्यूम इट करेक्ट. फॉर एनीथिंग. मैं आपको बोलूँ कि एक वो कोई अगर एक स्पिरिचुअल कोई सेइंग है, आप उसको पहले एक ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करोगे सो दैट इट लेमन कैन अंडरस्टैंड इट, करेक्ट. तब आप उसको एक बताओगे. तो वो जो इंटरमीडिएटरी है, वो लास्ट लेवल पे मिसिंग है. ये सबसे बड़ा गैप है जिसको ना कोई स्पॉट करना चाहता है. आई डोंट नो व्हाई पीपल आर टर्निंग देयर आईबॉल्स अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग. इंडस्ट्री एक नॉलेज प्रोड्यूस कर रही है. I am totally into that particular thing, that knowledge should go to the students, but not direct. It has to be converted through an intermediary. ये intermediary कौन है? Professors करेक्ट. plus the industry personnel who are there to train. They should sit together. उसको आपको एक डिज़ाइन करना पड़ेगा एक कंज्यूमेबल मॉड्यूल. मॉड्यूल में. फिर उसको ऊपर आपको यू हैव टू टीच इट इन द क्लासरूम फॉर सस्टेनेबिलिटी. करेक्ट. आप एक मेडिसिन, एक टैबलेट लेते हैं, उस टैबलेट के बहुत सारे इंग्रेडिएंट होते हैं, पोटेशियम है उसमें, ये पड़ा हुआ है वो. आपको टैबलेट लेने की क्या ज़रूरत है? आप थोड़ा-थोड़ा पोटेशियम वगैरह मार्केट से इकट्ठा करके खा लेते हैं. इज़ इट पॉसिबल? इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इंटू अ टैबलेट देन यू ईट इट. करेक्ट. करेक्ट. तो वो जो कन्वर्जन वाला मेथड है दैट इज़ मिक्स. हो क्या रहा है कि अभी वी नीड एन इंडस्ट्री इंटरवेंशन एंड देयर इज़ आई एम सेइंग देयर इज़ मोर और लेस नो डिस्कशन एज़ सच. द पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री कम और लार्ज लेवल पे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की जो जीआईएमएस में नहीं है. वी कॉल द इंडस्ट्री पीपल, दे कम, दे डिलीवर, दे गो. और वो सस्टेनेबल होता नहीं है. सस्टेनेबिलिटी है जब आपको, इफ देयर इज एन इंडस्ट्री पर्सन विच whom you are inviting, there is a discussion on the topic, there is a discussion how it will be delivered, there is a discussion how it will be mapped, measured, how it will be assessed, whether knowledge is transferred. The students are given a pre-lecture on that. If you are calling, let's say, CEO of Microsoft and he's going to speak on future of AI, उसका पहले अपने बैकग्राउंड तैयार किया. डू यू टीच द स्टूडेंट्स कि ये आएंगे और ये इसका बैकग्राउंड है इस टॉपिक का एंड यू आर गोइंग टू बी प्रिपेयरिंग दीज क्वेश्चंस टू आस्क देम. Yeah. और उसकी असेसिबिलिटी, नॉट असेसिबिलिटी, आई एम सेइंग उसका जो असेसमेंट है, व्हाट इज असेसमेंट की उसकी लर्निंग क्या, स्टेलेबिलिटी क्या है. सो आई ऑलवेज बिलीव्ड इट इज सपोज टू बी लार्जली अबाउट क्वालिटी. And that intermediary of industry connect and industry intervention is missing. Yes, it is required. It is an essential component in a PGDM program that you have large level of industry connect. लेकिन उस इंडस्ट्री कनेक्ट को डिजाइन और स्ट्रक्चर करना, इट्स एन एक्सपर्ट जॉब. करेक्ट. अभी इट इज गोइंग इन वेरी रफ फॉर्मेट. करेक्ट. सर, you talked about the delivery. आप, because I've worked with you, आप एक चीज़ के बारे में बात करते हैं कि हायर एजुकेशन में 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. वन इज़ योर डिलीवरी, वन इज़ योर रिसर्च एंड वन इज़ योर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स. मैं चाहता हूँ थोड़ा-सा आप इसके बारे में बात करें. देखो, अगर आप बात कर दे कि हायर एजुकेशन में आज बहुत सारा यूथ है जो करियर बनाना चाहते हैं, प्रॉमिसिंग फील्ड है, बहुत अच्छा फील्ड है, पीपल आर वेलकम इन दैट. बट वो दिन चले गए जब यू आर सपोज टू बी ओनली गुड टीचर टू एक्सेल इन द करियर इन हायर एजुकेशन. आज इट्स अ 3 लेग्स डोर्स. पहला होता है आपका टीचिंग एंड मेंटरिंग. यू आर सपोज टू बी गुड एट टीचिंग, यू आर सपोज टू बी गुड एट मेंटरिंग, देन you are supposed to be good at research and consulting. Then third is your event management and your administrative academic administration is supposed to be strong. हायर एजुकेशन में यू कैन चूज, आपको केटर तो इन 3 फंक्शंस को करना ही पड़ेगा. करेक्ट. दैट इज इम्पॉर्टेंट. लेकिन उसको कितना परसेंट केटर करना है, दैट इज योर फॉर. दैट आई वुड से द एजुकेटर हैज टू आइडेंटिफाई कि मैं, द रिसर्च इज माई कप ऑफ टी. So probably out of your entire, thought process,
70 or 60% you are keeping for research and consulting. Probably you're focusing 20% on teaching, and 10% you're focusing on academic administration, but there is no escaping. आज अगर आप किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, इनफैक्ट इवन इन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज दीज डेज, यू आर एक्सपेक्टेड टू डिलीवर इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन. आपको कोई कॉन्फ्रेंस मिलेगी, कोई इवेंट मिलेगा, कोई स्टूडेंट क्लब मिलेगा, IQAC, यू आर हेडिंग द IQAC हियर. एक एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन टास्क को मिलेंगे ही मिलेगा. Correct. द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज टीचिंग के साथ यू हैव टू मेंटोर द स्टूडेंट्स. मेंटोरिंग इज अ कॉन्सेप्ट व्हिच अ टीचर शुड बी डूइंग. It is an essential component, and consulting and research becomes a prime responsibility of a higher education educator. और मैं इसमें देखिए कहीं पे कुछ समझता भी नहीं हूँ कि कुछ इसमें बुरा. फॉर एग्जाम्पल, if you hire a driver, let's say, and at the end of the day, driver comes and say that uh, I am a good driver, right? And that's why I should be paid. Then you will say that this is an essential qualification. You got this job because you know driver. Correct. That That's the basic one. that is what you have to deliver. So that means you have to be a good teacher. Then only you are hired. So if you want something extra, you need to do something extra. Correct. If you're doing a regular job, then you should be paid regular. Then you have to go a little mile extra. You have to contribute in research. You have to contribute in consulting. You have to contribute, and there is nobody else who is doing it. So you have to do it. I'm saying there is nobody who's going to come in to rescue. कि आप मैं सिर्फ टीचिंग करूँगा, बाकी काम ये जो एक 360 डिग्री डोमेन है, ये कोई और करेगा. हु विल डू दैट? यू आर द ओनली मैन पावर सिटिंग इन द इंडस्ट्री. Correct. आप देखो ना, आप पेन समझो एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का एक सेट ऑफ फैकल्टीज है, सेट ऑफ प्रोफेसर्स है, एक सेट ऑफ स्टाफ है, एक सेट ऑफ सपोर्ट स्टाफ है. एंड फॉर एवरीथिंग, और अगर मैं एकेडमिशियन के 6 फंक्शन के लिए 6 अलग अलग लोग हायर करूँगा, सो माई कॉस्ट विल शूट अप. अगेन द बर्डन कम टू स्टूडेंट्स, ट्यूशन फीस. Correct. So optimization of resources is supposed to be there, and I think if teaching opportunity is contributing into all these 3 things, they really excel in their career. एंड आई थिंक जो आपने पहले बात करी अकाउंटेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी की, वो दोनों चीज़ें इसमें कवर होती है क्योंकि वो सर्कल पूरा वहीं से आता है. सर, जब हम सिर्फ टीचिंग की बात करते हैं, हाउ इज डिलीवरिंग इन हायर एजुकेशन सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम लाइक रेगुलर ग्रेजुएशन, या हम एक ट्रेडिशनल कोर्स की बात करें, अगर जैसे वो So there is a sea change. अगर आप देखो, so मैंने अभी ये जो 6 पिलर्स की बात की, so स्कूल टीचर्स आर नॉट बाउंड टू डू दैट. आप देखेंगे कि स्कूल टीचर को रिसर्च की फाउंडेशन नहीं है. वो ज़्यादातर फोकस है स्टूडेंट नर्चरिंग पे, और ये होना भी ऐसा ही चाहिए. दिस इज एग्जैक्टली राइट वे टू डू इट. आप जब तक खुद एक्सपर्ट नहीं होगे, कुछ नई डिस्कवरी नहीं करोगे, तो अगर आप ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पिरामिड की बात करें, सो अ टीचर इज सपोज टू बी एट द लेवल ऑफ क्रिएटिंग द नॉलेज, इवेलुएटिंग एंड क्रिएटिंग द नॉलेज. आप वहाँ होंगे तभी आप क्लासरूम में कुछ यूनिक पढ़ा पाएंगे. किसको मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपको एक तरीके समझाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, आपने ऑपरेशंस में कोई मतलब कुछ भी एक नया कोई टॉपिक थ्रू योर रिसर्च यू फाउंड आउट. मैं चलिए अपनी PhD की बात करूँ. लेट अस सपोज इन क्यूइंग आई डिस्कवर्ड अ न्यू कस्टमर बिहेवियर कॉल्ड रिवर्स बार्किंग. थीसिस हो गई, पब्लिश हो गई. अब इस कॉन्सेप्ट को जब मैं क्लासरूम तक लेके जाता हूँ और पढ़ाना शुरू करता हूँ, बिकॉज इट्स अ यूनिक कॉन्सेप्ट व्हिच इज डेवलप्ड बाय मी विद माय गाइड्स एंड टर्न द थीसिस. जब इस कॉन्सेप्ट को मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, सो माय स्टूडेंट गेट्स एन एक्सक्लूसिव वैल्यू. इसको कोई भी कॉन्सेप्ट को कहीं और पढ़ाना शुरू करते, वो उसको उस तरह से नहीं पढ़ा पाएगा, बिकॉज आई हैव द क्लैरिटी. और जिस इंस्टीट्यूशन में मैं हूँ, जहाँ पे ऑपरेट कर रहा हूँ, माई कोलीग्स विल बी द सेकेंड बेस्ट पीपल टू हैव द क्लैरिटी ऑन द सेम टॉपिक. एक टाइप पे एस्ट्रोफिजिक्स में वी वर द पावर हाउस, मैथमेटिक्स में वी वर द पावर हाउस द एंटायर कंट्री. व्हाई इट इज शिफ्टेड टू द वेस्ट? इट इज शिफ्टेड फॉर वन रीजन. अब आप देखिए, अगर अल्बर्ट आइंस्टाइन हैज टॉट E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ही टॉट इन द यूनिवर्सिटी, डिलीवर्ड, सो नोबडी कैन टीच इट बेटर देन हिम. हाउस इट इज द पावर ऑफ रिसर्च. या उस इंस्टीट्यूशन में जो उनके कोलीग्स रहे होंगे, दे विल बी द सेकंड चेन. तो आप देखो, डिलीवरी ऑफ क्वालिटी, द listening from a person who actually discovered it makes it exclusive, makes it sustainable, makes it fundamentally clear.
सो इसीलिए हायर एजुकेशन में अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की स्पेसिफिकली बात करूँ, आप देखें इसीलिए यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कैन नॉट ऑफर पीएचडी, दे आर नॉट रनिंग अ पीजी करेक्ट। इन द सेम एरिया, क्योंकि पीजी लेवल पे जो भी फैकल्टीज पढ़ा रही हैं उनके लिए रिसर्च बहुत ज़रूरी है। ग्रेजुएट लेवल की टीचिंग में लार्ज फोकस होना चाहिए टुवर्ड्स गिविंग द देन डायरेक्शन। दिस इज वेयर द बिगेस्ट गैप कम्स इन। स्कूल लेवल पे देखिए, स्कूलिंग आज की डेट में मैं जब अपने बचपन से और आज तक देखता हूँ तो स्कूलिंग हैज़ चेंज्ड बाय मीन्स इट हैज़ चेंज्ड लाइक एनीथिंग। आज आप देखो कि छोटे से छोटे टाउन में बहुत अच्छा स्कूल है। मेजर गैप आता है 12th से ग्रेजुएशन के बीच में। क्या? आज 2024 में अगर एक स्टूडेंट ग्रेजुएशन का इंटरव्यू दे रहा है, बोल रहा है कि हमारी यूनिवर्सिटी में क्लासेस नहीं चलती, बोल देते हैं सिर्फ एग्ज़ाम देने आओ। हम्म। ये जो गैप ग्रेजुएशन लेवल पे है ना, ये मेरा मेरा जो पर्सनल समझ है, जो अभी सिस्टम की डेवलप हो रही है, सबसे बड़ा गैप स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में है, ग्रेजुएशन लेवल की टीचिंग पे। और बहुत रिगरस फॉलोअप की ज़रूरत। प्रिंसिपल शुड बी एम्पावर्ड। आई थिंक द सिलेक्शन एंड दिस इज सपोज टू बी फ्लोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर सरकार को ये वाकई ही सुधारना है, कॉम्पिटेटिव लेवल लेवल के प्रिंसिपल्स आप लेके आइए। और ईमान सर, ये कहा जाता है कि प्रिंसिपल चेंज द स्कूल करेक्ट। कंप्लीटली। करेक्ट। आप कॉम्पिटिटिव प्रिंसिपल्स लेकिन आइए और उनको एम्पावर करिए, उनको बैक सपोर्ट करिए कॉम्पिटिटिव प्रिंसिपल्स को। अगर आपको ये ग्रेजुएशन टीचिंग स्ट्रक्चर को बदलना है, वो 3 साल का गैप सारे स्टूडेंट की जो कॉम्पिटेंस होती है उसको बर्बाद कर देता। करेक्ट। सो एज ए टीचर अगर मैं देखूँ, अगर प्रिसाइसली मुझे आपका क्वेश्चन आंसर करना हो, स्कूल लेवल पे हमें लार्जली फोकस करना होता है स्टूडेंट इज़ अ रॉ मटेरियल, उसको शेप करना, उसको मोरल्स, एथिक्स, वैल्यूज़ ज़्यादा सिखाना, टू प्रिपेयर हिम टू बी अ लर्नर, अ बेटर सिटीजन, एंड टू गिव हैंड इट ओवर टू द campuses as a raw product who is there to learn with a very positive mindset, who's there to explore, who's a good citizen. ग्रेजुएशन कॉलेजेस का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फैकल्टीज़ की, टीचर्स की बनती है, वो होती है उन्हें एक बेस तैयार करके देना टू बिकम एन स्पेशलिस्ट। तो जेनेरिक नॉलेज जो रिक्वायर्ड है विद रिस्पेक्ट टू स्पेशलाइजेशन, उसको ज़्यादा से ज़्यादा देना। और जो पीजी लेवल पे टीचर्स ऑपरेट करते हैं, उनका जॉब रोल लार्जली उनको स्पेशलिस्ट बनाना होना चाहिए और खुद के डेवलपमेंट में बहुत ध्यान होना चाहिए पीजी लेवल पे, सो दैट दैट रिसर्च कैन बी taught टू द स्टूडेंट्स। करेक्ट। Sir, you have been to various countries. You have been to Japan, you have been to Malaysia and other countries also. You have seen वहाँ का हायर एजुकेशन सिस्टम कैसे काम करता है। आपको क्या लगता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम को अगर हम इन कंट्रीज से मैप करते हैं, चाहे वो वेस्ट की हो, चाहे वो चाइनीज हो, कहाँ पे हम एक्सेल कर रहे हैं और कहाँ पे वी आर स्टिल लैकिंग? देखो, सबसे पहले मैं प्रोग्राम स्ट्रक्चर की बात बताता हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात मैं बताता हूँ। अभी रिसर्च बेस्ड पोस्ट ग्रेजुएशन आपने सुना होगा, एक प्रोजेक्ट के थ्रू पूरी पोस्ट ग्रेजुएशन हो रही है। इवन सर्टेन अफ्रीकन कंट्रीज आर डूइंग इट, वी आर फार बिहाइंड। एक प्रोजेक्ट बच्चा कर रहा है, उसी प्रोजेक्ट पे उसकी पूरी पीजी अवार्ड हो रही है, उसी प्रोजेक्ट के थ्रू उसकी पूरी लर्निंग चल रही है। वाई इट इज़ हैपनिंग? स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो क्या है? 1:10, 1:7, 1:15। पीजी की क्लास में 20-22 बच्चा बैठा। दैट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो जिस लेवल पे वेस्ट में एजुकेशन पहुंच चुकी है पीजी लेवल पे, एक्चुअली दे discourage people to take post graduation. In post graduation class, the only student sits who actually mean to do the post graduation. सो एक तो यहाँ पे बहुत बड़ा गैप है, जहाँ पे हम देखें कि जो पैडागोजी वेस्ट में अभी अडॉप्ट हो रही है, वी आर स्टिल ऑन द सिमिलर काइंड ऑफ पैडागोजी। मैं तो कह रहा हूँ फिर भी पीजीडीएम इंस्टीट्यूशंस बहुत चेंज हो गए हैं, वरना आप एमबीए इंस्टीट्यूशंस की, अदर पीजी स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूशंस की देखिए, एग्जैक्टली सेम यू विल फाइंड। कुछ चेंज हुए हैं, मैं ये नहीं कह रहा, बट द परसेंटेज इज नॉन सिग्निफिकेंट। करेक्ट। आप देखो ना, अगर आपके पास 10,000 इंस्टीट्यूशन है, उसमें से 2 चेंज हो जाए और आपको बोलो चेंज इज कमिंग, सो इट इज लाइक नथिंग अगेन, वंस अगेन, राइट? आपको देखना होगा कि चेंज इज सपोज टू बी दैट सिग्निफिकेंट दैट इट्स इम्पैक्ट कैन बी फेल्ट इन द इंडस्ट्री। करेक्ट। तो एक बहुत बड़ा जो गैप है वो एक तरह से स्ट्रक्चर में है ओवरऑल प्रोग्राम की, तो दैट नीड टू बी डिजाइंड, वी शेप्ड। अब आप बोलेंगे कि व्हाई कैन नॉट जीआईएमएस और एनी अदर इंस्टीट्यूशन बी द फर्स्ट वन टू चेंज दैट एंटायर स्ट्रक्चर? हाँ, हो सकता है, बट विल देयर बी टेकर्स? करेक्ट। दैट इज द क्वेश्चन। कस्टमर भी होना चाहिए उसमें।
उसके लिए आपके पास स्टिकर्स है क्या? और रील भी रीडिज़ाइनिंग एंड सिटिंग आइडल फॉर इट। सो पहला गैप तो यहाँ पे है। दूसरा गैप है हाउ the teachers or the faculties have been given independence. A lot of IITs have given a lot of autonomy to individual faculties, how they want to operate their course. क्या इस तरह की ऑटोनॉमी है? आपको पीजी लेवल पे फैकल्टी से वो पुलिसिंग हटानी होगी। आपको सही तरह के कॉम्पिटिटिव मैट्रिसेस सेट करने होंगे। आपको पीजी लेवल पे फैकल्टीज़ को अ, ये बताना होगा कि दिस इज़ द मैट्रिक्स व्हिच इफ यू परफॉर्म ऑन दैट यू आर स्टेइंग इन द पर्टिकुलर a domain, or else you pushed back, or you are no more a part of the system. So I think दो चीज़ों पे द ऑटोनॉमी ऑफ द टीचर बहुत बड़ी होती है वहाँ के। फैकल्टी कैन चूज what subject and how they are going to teach the assessments. They have to just fit in a grading system and deliver it. And the second very important part is how the programs are structured. Third very important part is mass level पे जो पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम है दे आर स्पॉन्सर्ड। करेक्ट सर, है ना? सो स्टूडेंट को भी मतलब देखिए स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम से अगर कोई पढ़ रहा है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। बिल्कुल है ना, क्योंकि कंपनी कंपनी के लोग भी इन्वॉल्व रहते हैं ना। इफ़ आई एम सेइंग मैं अपना 2% CSR का पैसा एक्स इंस्टीट्यूशन में लगा रहा हूँ और मेरी स्पॉन्सर फीस से 6 बच्चा पढ़ रहा है, सो आई विल प्रॉपरली अपॉइंट अ क्वालिटी मैनेजर एंड आई विल अपॉइंट अ क्वालिटी मैनेजर टू चेक कि ये प्रोग्रेस भी कर रहा है या हमारा नहीं कर रहा है। करेक्ट। एज अ कॉर्पोरेट मेंटर तो मैं भी तो अपने पैसे पे नज़र रखूंगा ना, बिल्कुल। वो वर्थ हो रहा है या नहीं हो रहा है। करेक्ट। सो तीसरा स्पॉन्सरशिप हो गया। और द फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस विच आई सी इज in the culture of the foreign universities and impact the education of where the West End is. The redundancy is been removed very thick and fast. तो आप देखो उसमें फंडामेंटल पैरामीटर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आप मैं तो काफ़ी साल पहले की बात कर रहा हूँ। इफ़ यू वांट टू डू एन MBA एंड यू एनरोल्ड फॉर द पर्टिकुलर प्रोग्राम, तो आपको पहले 15 दिन का इंडक्शन प्रोग्राम मिला है। करेक्ट। और वो प्रोग्राम अलग अलग चल रहा है। कॉमर्स ग्रेजुएट के लिए अलग है, 15 डेज का जो आपको प्री जॉइनिंग प्रोग्राम है। साइंस ग्रेजुएट So they all can come up to same level. हाँ, हाँ, देखिए कम अप टू सेम लेवल, और उस प्रोग्राम को जो पास करेगा वही आगे कंटिन्यू करेगा। 15 दिन के बाद असेसमेंट है। आप बताओ यहाँ पे कितने परसेंट इंस्टीट्यूशंस ये कर रहे होंगे कुछ, मैं ये नहीं कह रहा, कुछ कर रहे होंगे, लेकिन व्हाट परसेंटेज? करा। तो वो परसेंटेज ना नॉन सिग्निफिकेंट हो जाती है। और वो होता क्या है? मैं आपको बहुत सिंपल इक्वेशन बता रहा हूँ। आप अज़्यूम करो आप 100 कॉलेजेस हैं, 100 में से 2 कॉलेज ये प्रैक्टिस कर रहे हो, उससे जो मेलपात प्रोड्यूस होती है वो बहुत हाई क्वालिटी आउटपुट होती है, दैट माइग्रेट्स टू फॉरेन लैंड्स। करेक्ट। वो मीडियोक्रेसी जो एक मैन पावर का कॉम्पिटेंस है, हम उससे ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। और अगर हम जा भी पा रहे हैं तो 140 करोड़ की पॉपुलेशन में हमारा कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंट नहीं है। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, व्हाट वी सी ऑन कैमरा, व्हाट वी सी ऑन रील्स, the growth which we see, travel across the country and you will see how many years we are behind. You're absolutely right, sir. And sir, आपने चेंज की बात करी। I think when you came into the picture at JIMS and you took over as director, आपने एक चीज शुरू करी, that was SDL, self directed learning, which was not here, and I am sure most of the PGDM institutions or in fact PG institutions are not doing it. मैं चाहता हूँ what was your thought process आप शेयर करेंगे, why you introduced? Again, like NAP dictates now, that was the thought process behind it. In fact, my previous institution also the same thing which I started. Self-directed learning is a concept where a student has an independence to choose from the number of components in higher education from where he can earn the credit, can make a difference in their marks. Okay. So, higher education is all about learning through a self-pace also. So self-directed learning के पीछे था that you have been given a kitty of items which can be a NGO project, it can be a live project, it can be a research course, a research paper, a conference paper. So you have a bouquet to explore from, और उसमें आप 2 activities whatever you are passionate about, you perform those 2 activities and those credits which are reflecting, तो आपने सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के थ्रू 6 क्रेडिट अर्न किए। Those credits are not your reflection of your academic record. Those credits are reflection of your passion. Correct. In the mark sheet.
Correct. कि I picked these two instruments, these two formal instruments out of my choice. And these credits are reflecting that these are the two particular. So I think that is a rewarding mechanism, and that gives the student an opportunity to explore what they want to do, an independence thought process, which is pretty much needed to develop the creativity amongst the students. As a, I think अगर हम रिकॉर्ड उठा के देखें तो most of the students have gone for NGO and giving their time. So is SDL के through they are giving back to the society also. Absolutely. They have to at least give 30 hours in a community service where they are going to an NGO without getting any stipend or anything, and they're giving back. I've seen students teaching underprivileged students. I've seen students, catering and taking care of the road animals and everything. So it's a good thing. So that is what we are doing, developing a community, the society को they can give it back to the society, and in fact they can set example for their upcoming generation, which is very important. That's why how the human beings progress. And it impacts the student mentality also. मतलब जब बच्चा एक 8 लाख 10 लाख फीस दे रहा है, वो चाहे वो एजुकेशन लोन के थ्रू है चाहे पेरेंट्स के थ्रू है, बट जब वो एक अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट को पढ़ाता है, देन ही अंडरस्टैंड्स कि भैया मेरे को क्या मिल रहा है, which the underprivileged student is not getting. So it impacts. Absolutely. So empathy रखना और empathy का decision making में impact होना, these are two different things. So I think empathy is one of the very good things which may not influence your decision making, but it plays a key role in designing your decision making in a very rational manner. So empathy, emotions, until unless you do not get close to the society, we do not understand how the country looks like and kind of environment we are operating, then your empathy doesn't go stronger, your emotional intelligence doesn't go stronger, and if these two quotients do not go stronger, then your decision making may not be rational. Correct. To have a very develop a very strong logical reasoning, logical thinking, these components are essential, and I think that's that was the objective behind. Great, sir. Great. Sir, now I'll go to the student perspective. आपको क्या लगता है कि एक स्टूडेंट का हायर एजुकेशन से एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए? बिकॉज़ वी हैव सीन मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स व्हेन दे कम इनटू हायर एजुकेशन, एक पर्सपेक्टिव तो सिंपल है, वो है प्लेसमेंट, दैट वी अंडरस्टैंड। बट क्या सिर्फ प्लेसमेंट ही हायर एजुकेशन की एक्सपेक्टेशन है? आपको देखना पड़ेगा कि पहले ना ये मिथ बड़ा स्टूडेंट्स में रहता है प्लेसमेंट का। तो प्लेसमेंट काम कैसे करता है? डजंट मैटर आप जेएमएस ज्वाइन करिए, एमआईटी कैम्ब्रिज ज्वाइन करिए, आईआईएम अहमदाबाद ज्वाइन कीजिए, they will increase your probability of success. If a time coming to campus, there are certain set of students sitting in a particular company. So they increase your probability of success. So job of any institution is to give you opportunities, provide you opportunities in abundance, and the apt opportunities. That means with respect to your specialization and goal. And that is you who has to ultimately capitalize on it. Correct. Coming to your question that what is the student's expectation from higher education institution should be, it is supposed to be, I'm saying it is very ordinary and simple in platform. Am I getting enough opportunity? Am I being trained in a right way so that I can crack any opportunity? That is supposed to be approach. अब देखो ये ना एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है, कोई भी एनवायरनमेंट या इकोसिस्टम आपके लिए सिर्फ अपॉर्चुनिटी प्रोड्यूस करता है। करेक्ट। आई एम श्योर आप रहे होंगे, आप डिसिप्लिन रहे होंगे, पेरेंट्स का सेम एनवायरनमेंट था, फैमिली सेम डाइनिंग टेबल था, सेम स्कूलिंग में आप जा रहे थे, है ना? उसके बावजूद आपके 10th के सीबीएसई बोर्ड के स्कोर आपके और आपके सिबलिंग के डिफर कर गए हों। ऑफ कोर्स। ऐसा तो नहीं है जिसकी ज़्यादा परसेंटेज आई मदर उसको ज़्यादा घी डाल के सब्जी बेच रही हो। एब्सोल्युटली। इकोसिस्टम में इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोड्यूस की, स्कूल भी सेम था, टीचर भी सेम थे, लेकिन उसको कैपिटलाइज हर आदमी ने डिफरेंट तरीके से किया। क्यों किया? क्योंकि उसने कैलिबर किस तरह से उसका डेवलप होता चला गया। सेम थिंग हैपन्स हियर, एनी इकोसिस्टम इन पर्सनल लाइफ और प्राइवेट प्रोफेशनल लाइफ। सेम बॉस के तक 4 बच्चे जाके ज्वाइन करते हैं, एक ग्रो करते करते वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे पहुंच जाता है, 3 वहीं रीजनल मैनेजर, एरिया मैनेजर पे पूरी लाइफ गुजार देते हैं। कंपनी सेम थी, एनवायरनमेंट सेम था, बच्चा सेम था, सब पीजीडीएम करके आए थे, सब सेम पैकेज पे है। स्टिल उस एनवायरनमेंट ने जो कुछ एनर्जी या अपॉर्चुनिटी प्रोड्यूस की, उसको किसी ने एक बेहतर तरीके से कैपिटलाइज किया, कोई उसको नहीं कर पाया। करेक्ट।
So अगर आप देखें what you can choose, what is in your hand, or what you can make a decision about. You can make a decision about being at the right environment or an ecosystem. This is the only choice you can make. अरे Environment choose कर सकते हैं ना, वो environment आपके लिए अपॉर्चुनिटी प्रोड्यूस करता है, उसकी उसको कैपिटलाइज कैसे करना है, that is completely how you have been trained to do that and how your self caliber got developed. करेक्ट। तो एज ए स्टूडेंट अगर आपको हायर एजुकेशन से एक्सपेक्टेशन रखे, यू नीड टू सी वेदर आई एम मूविंग ऑन अ राइट प्लेटफॉर्म और नॉट. और सर उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना चाहिए स्टूडेंट को? लाइक व्हिच इज़ द राइट दे नीड टू फोकस ऑन टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस, किस तरह से टीचिंग लर्निंग हो रही है. दे नीड टू फोकस ऑन कि कोई स्टूडेंट ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी किस तरह की है. दे नीड टू फोकस ऑन किस टाइप की मैन पावर या फैकल्टीज हैं जो उन्हें पढ़ा रही हैं, दैट काइंड ऑफ इंटरेक्शन. They need to focus on the what kind of curriculum they will be exposed to. They need to focus on what are exclusive learning and development or probably soft skill development, behavioral skill development, curriculum development, subject knowledge development initiative the particular institution is taking. अगर आप मुझे बोलते हो कि आपको पोस्ट डॉक्टरेट करने तो फर्स्ट थिंग व्हाट विल यू सी? आई विल सी द राइट नेम, आई विल सी रीड हिज प्रोफाइल. करेक्ट। मैं ये देखता ही नहीं कि उस इंस्टीट्यूशन में पंखा है, एसी है या नहीं है. हालांकि दीज थिंग्स हैव बिकम एसेंशियल कैन these days. लेकिन आप अगर इसको एक मैच्योर लेवल पे जाके देखें तो एक स्टूडेंट को क्या चाहिए पढ़ने के लिए? गुरु, किताबें, दैट्स इट. कर उसके बाद उसको फर्श पे बैठ के पढ़ना हो, एक पेंसिल से पढ़ना हो या कॉपी से पढ़ना हो, व्हाट डिफरेंस इट मेक्स? अब बताइए व्हाट योर पेरेंट मेक्स. सो आपकी प्रायोरिटी, अब मैं किसी स्टूडेंट से बात करता हूँ तो वो कहता है जी मेरी प्रायोरिटी है प्लेसमेंट्स. सो अगर मैं एक स्टूडेंट को ये बोलता हूँ कि आप किसी भी XYZ इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लीजिए, ट्यूशन भी पे कीजिए, वो बोले 2 साल बाद आपको प्लेसमेंट बन जाएगी, और पूछे स्टूडेंट कि मेरे को क्या करना है, और इंस्टीट्यूशन से इसकी चादर तान के सो जाओ. डजंट हैव विल इट वर्क? नो सर। है ना. सो जो आउटपुट होता है, एनवायरनमेंट डजंट प्रोड्यूस आउटपुट, करेक्ट। ये समझना होगा. एनवायरनमेंट प्रोड्यूसेस अपॉर्चुनिटीज, पीपल प्रोड्यूस आउटपुट. करेक्ट। एज ए लीडर, आपका, मेरा एज ए योर एज ए फैकल्टी, माइन एज ए लीडर, इज जॉब रोल टू कीप द एनवायरनमेंट करेक्ट. लोग उसको अलग अलग तरह से चर्न करेंगे, लोगों की परफॉर्मेंस अलग अलग आएगी. एनवायरनमेंट कभी भी आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करता, ये मुझे, मेरी जो पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है वो सबसे बड़ा मिथ. एनवायरनमेंट इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है बिकॉज एनवायरनमेंट इज अ बिगर टर्म. करेक्ट। लोग उस एनवायरनमेंट के अंदर उस एनवायरनमेंट को चर्न करके आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंटली. करेक्ट। करेक्ट। एब्सोल्युटली। And I think institutions like GIMS, which focuses on the opportunities that you are saying. For example, जो हम एक स्टूडेंट आता है अलग अलग बैकग्राउंड्स, एंड वी हैव डिफरेंट स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स. सॉफ्ट स्किल्स की अगर हम बात कर लें, सो द अपॉर्चुनिटीज दैट वी आर गिविंग टू द स्टूडेंट इन टर्म्स ऑफ सॉफ्ट स्किल्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. अब उसको जैसे आप बोल रहे हैं वो कितना उस पे काम कर सकते हैं और कितना अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ा के उस अपॉर्चुनिटी में से निकलता है, उसका प्लेसमेंट का फिर चांसेस ऑब्वियसली बिकम्स हायर. करेक्ट सर. Sir, I'll move on to the last question of this podcast. Where do you see the future of Indian education system, especially higher education? What is the future and where do you want it to be? ओके, सो द वे द कंपनीज, द वे द वर्ल्ड इज मूविंग, मैं अगले 20 साल में देख रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो, बिकॉज देयर इज नॉट इनफ इंटेलेक्ट मैन पावर इन द वर्ल्ड विच इज बिन प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट कंट्रीज. The way the vulnerable situation of the world is going on, it will impact the education largely. जिस तरह से रशिया यूक्रेन वॉर आ रही है और जिस तरह से वेस्ट अनसेटल हो रहा है, सो दे आर फेलिंग टू फोकस लार्जली ऑन देयर हायर एजुकेशन, बट दे वांट टू कीप ग्रोइंग. उसके लिए उन्हें चाहिए इंटेलेक्ट माइंड्स हु एक्चुअली कैन कोप अप विद देयर फ्यूचर डिमांड्स. So how I see it, that large number of those particular opportunities will be converted into academics. They will come back to our country and we will be, because we are by far, अगर मैं देखता हूँ पूरे वर्ल्ड में, we are the country which is largely I would say that not impacted much by the external forces. Correct, sir. अभी अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि जितनी अपॉर्चुनिटीज बाहर प्रोड्यूस हो रही हैं पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड, where the new technologies are coming up, new dimensions are coming up, they will be taught in Indian universities. Manpower will be produced here for the entire globe. Manpower will be taught here for the entire globe.
Government is taking really big initiatives, and I am अभी तो कई साल हो चुके हैं. चिपसेट में स्पेशलाइजेशन इंजीनियरिंग का इंट्रोड्यूस करना इज़ अ बिग माइलस्टोन व्हिच पीपल डू नॉट इवन रियलाइज. Correct, sir. है ना? तो इस तरह के स्पेशलाइजेशन ऑफ एआई स्पेशलाइजेशन, लाइक वी आर द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन नॉर्थ में. हम जितना एआई में मूव कर रहे हैं, आई डोंट थिंक एनी इंस्टीट्यूशन इज मूविंग दैट फास्ट on the amalgamation of artificial intelligence and management. So in next 10-20 years, I think large number of global manpower will be supplied from our country. That is one thing. Where I want to see higher education of India is rather than just catering to the need, creating the need and inviting the manpower across the world so that they can become part of our need. Correct. And I think we are moving in that direction because many of the foreign universities have planned to come in, and one of them have opened a campus. So अभी जो mindset है वो ये है that we are going to go to India, we will produce the manpower as per their need. Correct, sir. वो cycle reverse करना, this is where I wish to see it, where foreign players come to India and say that we need some professors who can teach this technology at our institution, our university, or probably when the people from West started applying for the jobs in India, perhaps largely. So I think that is a scenario where we will be becoming really successful. Great, sir. Great. Again, sir, thank you very much for your time. Thank you. This is it, guys, from this particular episode. I hope to see you again. Thank you.